جنوبی کشمیر کا سب ضلع ترال ہمیشہ علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ کم عمر بچے اور نوجوان کتابیں تحریر کرنے میں اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ ترال کے نوجوان عدنان شفیع اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ پیش ہے سید منظور کی یہ خاص رپورٹ۔ چندریگام ترال کے 24 سالہ نوجوان عدنان شفیع کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے 12ویں جماعت سے ہی کتابیں تحریر کرنا شروع کر دیا تھا۔ حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب ٹیئرز فال ان مائی ہارٹ تحریر کی ہے، جس پر گلوبل فریٹرنیٹی آف پوئٹس نے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور چند روز قبل اس جواں سال قلمکار کو گجرات ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ Lately I have received an honor, appreciation جو مجھے ساہتیہ گجرات اکیڈمی سے ملا، اور in collaboration with Motivational Strips. Motivational Strips is writers forum ہے، world's #1 active writers forum ہے، جہاں سے مجھے یہ ملا۔ اور اس کے علاوہ میں بہت خوش ہوا جب مجھے یہ ملا، اینڈ مائی فیملی ممبرز ویئر ویری ہیپی کہ میں کتابیں I will be continue to write books more and more. I have just written 6 books that are going to be published soon inshallah. عدنان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عدنان کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ عدنان کی اس کامیابی سے علاقے کے لوگوں میں بھی کافی خوشی ہے۔ عدنان صاحب نے جو یہ حال ہی میں یہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل کیا ہے، اس کے لیے ہم سب گھر والے، سارا گاؤں، یعنی کہ سارا گاؤں بہت ہی خوش ہے، کیونکہ اس نے بہت محنت کی ہے، دن رات محنت کر کے اس نے اس مقصد کو کامیاب کیا ہے۔ بہت پراؤڈ فیل ہے ہمیں اس پر، مطلب پوری فیملی جو ہے، پورے گاؤں میں، پورے ترال کے علاقے میں یہ بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور میرے دوست بھی بہت خوش ہوئے۔ جو پہلی انسپریشن جو میری سب سے پہلی رہی ہے وہ جب اس نے بک لکھی ہے ٹیئرز فال ان مائی ہارٹ، اور دوسری انسپریشن میری رہی ہے جب اس نے یہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جیتا ہے۔ عدنان نے بتایا کہ ابھی تک انہوں نے تقریباً 50 کتابیں لکھی ہیں، جس میں دیگر مدیروں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، عدنان امریکہ اور برطانیہ کی میگزینز اور نیپال کے ایک آن لائن نیوز پیپر میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کشمیر کا قصبہ ترال اگرچہ علم و ادب کا گہوارہ رہ چکا ہے، وہی یہاں کے نوجوان اور چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے بھی کتابیں لکھنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، ان بچوں کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تاکہ یہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ سید منظور، نیوز 18 اردو، چندریگام، ترال۔ وادی چناب کے سرکردہ سماجی کارکن وادیب محمد اسحاق زرگر کے انتقال پر مختلف سماجی اور ادبی تنظیموں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ معروف ادیب اسیر کشتواری نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پیشے کے لحاظ سے لائبریرین تھے، لیکن انہوں نے ایک تاریخ ساز کام کیا کہ 1986 میں ڈوڈا میں فرید آباد ادب قائم کی۔ اسحاق صاحب تنظیم ساز تھے، بڑے مہمان نواز تھے، اور جب کبھی بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا تو لوگ ان کے گھر پر جاتے تھے۔ وہ صرف ادیبوں کی نہیں، سوشل ورکروں کی اور ڈوڈا کی جامع مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ بھی وہ منسلک رہے، اسلامیہ اسکول کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ ہمیں ان کے ارتحال کا بہت دکھ ہے، اللہ ان کو گری کی رحمت کرے۔ اینڈ چیف ایگزیکٹو کاؤنسلر LHDC کرگل فیروز احمد خان نے زنسکار میں موسم سرما کو لے کر کی گئی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ منعقد کی۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں، کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات، اسٹاک اور سپلائی کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کاؤنسلر فار ٹورزم اینڈ زنسکار افیئرز اور ایگزیکٹو کاؤنسلر فار ایگریکلچر اینڈ ہیلتھ بھی موجود تھے۔ لداخ پولیس کے اہلکاروں کے لیے ایک ماہ طویل آن لائن کورس اختتام پذیر ہوا۔ BPR&D کی جانب سے لداخ پولیس کے اہلکاروں کو تربیت دی گئی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں پروگرام کا اختتام ہوا۔ اس ایک مہینے میں اہلکاروں کو 86 لیکچرز حاصل ہوئے۔ IPC، CRPC اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کے حوالے سے پولیس اہلکاروں کو ٹرین کیا گیا۔ IGP لداخ نے DG BPR&D کا شکریہ ادا کیا۔ بیروا کھاک تحصیل کے
रावतपुरा तक राब्ता सड़क पर गैर मयारी मैकडम बिछाने का लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। लोगों ने ठेकेदार और मुतल्लिक़ा महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का मज़ीद कहना है कि सड़क के अतराफ में पुख्ता ड्रेन तामीर करने का भी कोई पास व लिहाज नहीं रखा गया। लोगों के मुताबिक इस मामले को लेकर उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को मुतल्लिक़ किया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस हवाले से जब हमारे नुमाइंदे ने फ़ोन पर मुतल्लिक़ा महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बडगाम बासित अमीन शाह से पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अपनी टीम को जाए मौका पर जांच के लिए रवाना करेंगे। 20-30 साल से वेट कर रहे थे कि हमारी सड़क ठीक होगी, मैकडमाइज होगी वगैरह होगी। अब खुदा करके ये मसला हल हुआ था, बट जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसके काम है, जिनको ये काम करना था, मटेरियल आपने खुद देखा कितना सब स्टैंडर्ड है। 2 दिन ही हो गए, तबाह हो गई 2 दिन में ही सड़क। हमने उनको बोला कि हम आला हुकाम तक बोल रहे हैं कि आला हुकाम क्या करेंगे, वो हमारी जेब में है। तो जो ये मैकडमाइज है, ये बिल्कुल सब स्टैंडर्ड इसने मटेरियल लगाया है। गाड़ी चलने का कोई ये चांस ही नहीं है। इस पर ज्यादा मसला हो गया कि ऊपर से इसने रोड लाया, जबकि इसको नीचे से लाना था, कनेक्ट करना था जीरो से। इसने लगाया उस जगह जहां इसको अपना फायदा हो। और जो हमारी पाइपलाइन थी गांव को चाह रही थी, वो भी इसने डिसमेंटल किया। मैकडम ये सही त्रावान किया कन चिन हूं रंग खोलमुत सह त्रावान ये मैकडम, यह त्रावान ब्रोह ब्रोह पत सह फोटमुत। शांच त्रावान, अजन त्रावान जांच, अजन 3, अजन जान अंटी। लिहाजा मटीरियल गुजर मुकम्मल गुन ताकि फायदे वाते अलाकस वाते फायदे यह कुन काबिल है। यहाँ पे जब लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अफसरान को भी मुतल्लक किया है, मगर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। ज़रूरत इस बात की है कि मुतल्लिका महकमे को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस पर संजीदा नोटिस ले और लोगों की उम्मीदें जो है वो उन पे पूरी तरह खरा उतरे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, खाग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी यूनिट कश्मीर ने एलडी अस्पताल श्रीनगर में फल और दीगर खाने पीने की अशिया तकसीम की। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये पूरा हफ्ता सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा और इस तरह के कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। दुनिया की सबसे पॉपुलर नेता, देश के सबसे पॉपुलर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और जहाँ उनका जो जन्मदिन है वो जन्मदिन हम या तो गरीब हूँ या बीमार जैसे भी पिछड़े हुए लोग जो समाज के लोग हैं उनकी खिदमत के लिए थे। और इस हफ्ते को ही हमने सेवा सप्ताह यानी सर्विस वीक दे दिया। और आज हम एलडी हॉस्पिटल में आए हैं क्योंकि यहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल है, कश्मीर का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल है, और इसके आज हमने यहाँ फ्रूट दिए। बेसिकली जो इसके पीछे जो मैसेज है वो ये मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों पर चल के देश और गरीबों की कल्याण, उनकी खिदमत के लिए आगे आए। यही मैसेज हम आज देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने माता वैष्णो देवी दरबार में पीएम की सेहत और लंबी उम्र के लिए पूजा की। इस दौरान उन्होंने पांडुपैक पर माता वैष्णो देवी का झंडा भी लहराया। बीजेपी के नायब सदर ने एक बार फिर मिलिटेंटों को मेन स्ट्रीम में वापस आने की दावत दी है। मोहम्मद सूफी यूसुफ ने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर शोपियां में भी बीजेपी लीडरान से खिताब किया। अलबत्ता एक चीज़ है कि आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही को ही टारगेट किया गया है, और उस वजह से फिर हमारे 4-5 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं। बट मैं अपने कार्यकर्ताओं को, मैं अपने जो शोपियान के लोग हमारे हैं, जो हमारे शोपियान के लीडर्स हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो पार्टी के और की है। ऐसी ताकतें अभी भी है जो ताकतें नहीं चाहती हैं कि यहाँ अमन हो, यहाँ पीस हो। बट ये अवाम के सेवा कर्मी हैं, नौकर हैं अवाम के, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और सिक्योरिटी का मामला जो आपने बोला है वो हमने हायर अथॉरिटी से बात करी है। कुछ लोगों को मिल गई है सिक्योरिटी, कुछ लोगों को और मिलेगी, और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आज बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने एक अनोखे अंदाज में जश्न मनाया और अपने आप को जंजीरों में जकड़ कर रखा था। और हंदवाड़ा में कारकुनों की एक रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि आज तक सियासी जमातों ने कश्मीरियों को जंजीरों में जकड़ कर रखा था और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कश्मीरियों को इन जंजीरों से आज़ाद किया है। मैं उस माँ को सलाम करना चाहता हूँ जिस माँ ने ऐसे सपूत को जन्म दिया। सालों से
हम इन्हीं जंजीरों में बांध के हमें रखा गया था, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को, खासकर चाहे वो 370 की बात हो, 35A की बात हो, गरीब अवाम की कहीं पे सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए मैं आज जंजीरें बांध के आया और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक मैसेज दे दी कि हम इन जंजीरों से आज़ाद हो चुके। महकमे समाजी बहबूद ज़िला कुलगाम की तरफ से आज ड्रग डी एडिक्शन कैंप का इफ्तिताह किया गया, जबकि एक सेमिनार का भी अहतमाम किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिमरनदीप सिंह ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मुकर्रिरीन ने ड्रग डी एडिक्शन के हवाले से बात की और इसके महरक़ात से हाज़रीन को आगाह किया। इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डीलर ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर अहम कागजात और आलात तकसीम किए। बानीपुरा में आज पुलिस की जानिब से यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पुलिस स्टेशन बानीपुरा के अहाते में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में नौजवानों ने पुलिस को मुआशरे में मौजूद मसाइल से आगाह किया। देखिए, आज यहाँ पे बांडीपुरा पुलिस ने एक प्रोग्राम इनक़ाद किया था जिसमें इन्होंने यूथ को बुलाया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमने पार्टिसिपेट किया, मगर हमने भी अपनी ग्रीवेंसेस, डीएसपी साहब उधर थे, इदरीस साहब और एसओ साहब थे, हमने उनको अपनी ग्रीवेंसेस बोली कि यूथ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट्स के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ड्रग एडिक्शन जो बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में उसके रिलेटेड, और भी बाकी ग्रीवेंसेस थी। हमने उनको वो बोला तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि हम इन पे जल्द अज जल्द काम करेंगे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुल आंगर ने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान डीसी ने लासीपुरा में कायम सिडको इंडस्ट्रियल में ज़ेर तामीर 165 मेगावाट के रिसीविंग स्टेशन में चल रहे काम का जायज़ा लिया। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम मौजूद ग्रिड स्टेशन ओवरलोड होने के सबब सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट और पुलवामा के कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर रहती थी। कस्बा पुलवामा को जाज़िब नज़र बनाने के लिए हुकूमत ने काफ़ी अरसा कबल कस्बे में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स कुछ ही रोज़ चलने के बाद नाकारा हो गई। तकरीबन 13 साल से कस्बा पुलवामा की स्ट्रीट लाइट्स बेकार है, जबकि आज तक मकामी आबादी ने कई बार ये मामला इंतज़ामिया के नोटिस में भी लाया, ताहम इसके बावजूद इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। साथ में उनको नस्ब किया गया था, लेकिन चंद दिनों को चलने के बाद ही ये बेकार पड़े हैं। शाम डलते ही यहाँ पे अंधेरा छा जाता है और लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियाँ आ जाती हैं। हमने इस हवाले से महकमे म्यूनसिपलिटी से बात की थी, उन्होंने अपना पल्लू झाड़ा और कहा कि इस हवाले से आपने महकमे R&B का जो इलेक्ट्रिक डिवीज़न है उसके साथ रब्ता करना है, मगर बदकिस्मत से उसका श्रीनगर में दफ्तर है। हम चाहते हैं कि वक्त की यहाँ जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इस मसले को उठाए और स्ट्रीट लाइटों को जो बस अड्डे में भी है और जगह जगह तैनात नस्ब की गई हैं, इनको फिलफोर चालू किया जाए। गांदरबल के साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार की क़यादत में एक वफद ने कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के साथ मुलाकात की। जब्बार ने इस दौरान सिंध माइनिंग और मिनरल एक्सट्रैक्शन का मामला उठाया। उनसे एक अपना मेमोरेंडम पेश किया कि जिसमें ये कहा गया कि जो ये एक्सक्यूएशन का काम है इसको ऑक्शन ना किया जाए और जिस तरीके से साल से चलता आया है उसी तरीके से इसको चलने दिया जाए, क्योंकि इससे काफी हजारों लोग के रोजी रोटी का मसला है, बेरोजगार हो जाएंगे। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी जिनको रोजगार के मौके नहीं मिलते वो यहाँ से ही अपना रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। तो उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया कि हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि इस ऑक्शन को खत्म करके जैसे पहले चलता था वैसे ही हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी हमें कहा कि अगर हमें इससे हायर अथॉरिटी कैबिनेट का भी अप्रूवल लाना पड़े वो भी हम करने को तैयार है। ज़िला गांदरबल में ज़राअत के तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कश्मीर ने लार में 2 हाईटेक पॉली हाउस का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि हिकमत अमली के तहत हाईटेक और मुख्तलिफ काश्तकारी के तरीक़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ज़राअती कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा और इलाके में ज़्यादातर अराज़ी पर सब्जियों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी। इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल एंड कंगन मौजूद थे।
LG کے مشیر بصیر احمد خان نے آج راجوری کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے لوگوں سے بات کی، ان کے مطالبات کو سن لیا۔ مشیر نے لوگوں سے ان کے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔ ضلع رامبن میں کورونا وائرس ٹیسٹ کرنے میں شدت لانے کے بعد کورونا مثبت کیسوں میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ضلع رامبن کے چندرکوٹ کنفر علاقے میں انتظامیہ کی جانب سے کورونا اینٹیجن ٹیسٹ رپورٹس میں ایک مقام پر 16 افراد کے کورونا مثبت آنے کی وجہ سے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایک طرف جہاں ملک بھر میں بی جے پی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا جنم دن منایا، وہیں دوسری جانب سرکار کی پالیسیوں سے ناراض جن جاگرتی منچ کے کارکنان نے تھالیاں بجا کر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ سرکار کی پالیسیاں نوجوانوں کے خلاف ہے۔ انڈین آرمی کی جانب سے شوپیاں میں 3 روزہ مارشل آرٹ کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کا اصل مقصد بچوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا تھا۔ آج کل کے بچے موبائل فونز اور انٹرنیٹ میں اپنا سارا وقت صرف کرتے ہیں، اسے ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور بچے کھیلوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس کیمپ میں کئی بچوں نے حصہ لیا اور اپنا ہنر دکھایا۔ لاک ڈاؤن کے بعد پہلی مرتبہ سرکار کی گائیڈ لائن کے تحت محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے کنجر کرکٹ گراؤنڈ میں انڈر 19 انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ اس ٹورنامنٹ کا افتتاح SDM گلمرگ شبیر الحسن نے کیا۔ اس موقع پر محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر۔ آداب۔